بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں سمینہ رانا، اور کھیل کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل جانیے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے۔ بچے سب کو اچھے لگتے ہیں مگر ہنستے مسکراتے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی بہتر نگہداشت کے لیے کنبے کے افراد اور وسائل میں توازن رہے۔ توازن برقرار، زندگی باوقار۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کی ترقی کے بڑے منصوبے 103 کلومیٹر طویل نوکنڈی ماشکیل شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی مسائل سے نکل کر ترقی کا سفر شروع کر دیا ہے اور مخالفین ہماری کامیابی سے خوف زدہ ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ریاض برق کی۔ نوکنڈی ماشکیل شاہراہ کا ورچوئل سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کے مستقبل اور وفاق کی مضبوطی کے لیے چھوٹے صوبوں کی ترقی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پسماندہ علاقوں کی ترقی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ وہ صوبہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں تو اس میں بہت بڑا پوٹینشل پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسی ایک ہماری بڑی کوشش کا حصہ ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے، اور جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ وہ علاقوں کو اب ہم مین سٹریم میں لے کے ان کو اٹھائیں۔ پاکستان کی فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، اور دوسرا پاکستان ایک ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم مافیاز کو قانون کی حکمرانی کے نیچے لا رہے ہیں۔ قانون اب سب کے لیے برابر ہوگا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آؤں۔ اگر کسی نے کلاسک ایگزامپل دیکھنا پاکستان میں کیا ہوا، 90 کی دہائی میں 88 میں پیپلز پارٹی پاور میں آئے، آصف زرداری سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس۔ 90 میں پیپلز پارٹی جاتی ہے، آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں کرپشن پہ۔ 93 میں نون لیگ جاتی ہے، پیپلز پارٹی پھر پاور میں آتی ہے، وہ جیل سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس۔ اور 96 میں جیسی پیپلز پارٹی جاتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں۔ تو وہ قانون کی حکمرانی نہیں تھی، طاقت کی۔ جب طاقت میں آؤ سارے کیسز ختم، جیسے ہی آپ طاقت سے جاؤ سیدھا واپس جیل میں۔ تو یہ قانون نہیں ہے، تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تحریک انصاف، قانون کی جنگ۔ تو یہ میرا سب سے بڑا ہے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے مافیاز کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ یہ میرا پہلا آبجیکٹیو ہے۔ اور دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو ہم ایسا اٹھائیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں اٹھایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تعلیم، صحت، سماجی تحفظ، انصاف کی فراہمی، زراعت اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کے سنہری اصولوں کے تحت ملک کو فلاحی مملکت بنائیں گے اور معاشرے کے کمزور طبقوں کی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ نوکنڈی ماشکیل شاہراہ معدنیات کی ترقی اور تجارت کے فروغ کی راہداری ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں سیالکوٹ راولپنڈی موٹر وے سمیت شاہراہوں کے بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ 2.5 سال میں جو پچھلی حکومت نے سڑکیں بنائی تھی، میں NHA کے آفیشل فیگرز لے کے آیا ہوں۔ 645 کلومیٹر سڑکیں بنی تھی۔ ہمارے 2.5 سال میں جن سڑکوں کے اوپر کام مکمل ہوا، 1753 کلومیٹر شاہراہوں کے اوپر ہم نے کام کیا۔ بڑے منصوبوں کے اوپر آغاز کیا، اس سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ
1,645 लोगों को रोजगार मिला। नौकुंडी माशकेल दोरोया शाहराह 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगी और इससे 4,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। शाहराह की तामीर से ईरान की सरहद तक रसाई आसान होगी। खजूर समेत मुख्तलिफ शोबों में मकामी तिजारत को फ़रोग मिलेगा और इलाके में समाजी और माशी तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ होगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के वज़ीर आज़म ली की चियांग के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह और कोरोना वैक्सीन की फराहमी में चीन के ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड में कलीदी अहमियत का हामिल मनसूबा है। इस मनसूबे की तकमील मुआशी सरगर्मियों और रोज़गार के मौक़ों में इजाफे के साथ इलाक़ाई तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने में मुआविन होगी। वज़ीर आज़म ने अपने चीनी हममनसब को मरीख़ खलाई मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये कामयाबी चीन की टेक्नोलॉजी के मैदान में बढ़ती हुई क़ुव्वत की अक्कास है। 7 दहाइयों पर मुहित सिफारती ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये सालगिरह शानदार अंदाज में मनाएंगे। इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ जंग में ताउन को उजागर करते हुए चीन की जानिब से वैक्सीन की फराहमी और मुसलसल मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इज़हार किया कि आला सतह तबादलों से दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत होगा। गाज़ा पर इसराइली जारहियत रोकने और जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। सलामती काउंसिल के 3 इजलास बेनतीजा रहने के बाद मुसलमान ममालिक की दरख्वास्त पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास जारी है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर किया। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। निहत्थे फ़लस्तीनियों के तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। इस सूरत हाल में आलमी बिरादरी की मुदाखलत की ज़रूरत है। There are times in history when the decisions of nations are remembered by posterity. This is one such moment. What we do today or cannot do will be recorded in history. Driven by arrogance and emboldened by impunity, Israel has mounted a relentless onslaught on the occupied and beleaguered people of Palestine. Gaza is plunged in darkness, literally and metaphorically. The only light is that of Israeli explosions. This is Palestine, where in full view of the world, the Israeli airstrikes bring down entire buildings to kill and terrorize innocent Palestinians and even silence the media. It is time to say enough. The voice of the Palestinian people cannot and will not be silenced. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Anger, which breeds extremism and often spawns acts of violence. A just solution for Palestine is imperative for the maintenance of regional and global peace and security. Clearly, the onus for restoring peace rests on Israel. It must end its occupation. It must implement the resolutions of the Security Council and the General Assembly. This General Assembly session must send a clear message to the Palestinian people and to Israel. It is only through determined and decisive action that this assembly can restore the credibility of the United Nations and demonstrate its effective role in preserving world peace and global order based
on equity and justice. عرض فلسطین میں بھی حاضر ہوں. O land of Palestine, I too am there for you. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیلی حکومت جنگی قوانین کی خلاف ورزی سے باز رہے اور آبادی پر فضائی حملے فوری بند کرے. انہوں نے کہا کہ غزہ میں میڈیا اور اقوام متحدہ کے دفاتر پر حملے قابل تشویش ہیں. صورتحال فوری جنگ بندی کی متقاضی ہے. ترک وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے جرائم کی قیمت چکانا ہوگی. ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی بربریت بند ہونی چاہیے. فوری سیز فائر کے ساتھ اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پر قبضہ بھی ختم ہونا چاہیے. فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ اسرائیل نے نہتے شہریوں پر مظالم کی انتہا کر رکھی ہے. معصوم اور نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مسجد اقصیٰ میں نہتے نمازیوں پر یلغار کی گئی. اسرائیلی جارحیت اور قبضے نے تمام حدیں عبور کر لیں. قطر کے وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی افواج نے ماہ مقدس کا تقدس پامال کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا. عبادت میں مصروف معصوم شہریوں پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی جارحیت ختم کرانے میں کردار ادا کرے. اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ عالمی امداد کے منتظر ہیں. شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینی عوام کی زبردستی بے دخلی جنگی جرم ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اسرائیل پر عالمی چارٹر کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالے. اسرائیل کے جنگی طیاروں نے آج بھی غزہ پر بمباری جاری رکھی جس سے ایک فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. گزشتہ 11 روز سے جاری تشدد میں 65 بچوں سمیت 230 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اسرائیل پر حماس کے حملوں میں بھی 12 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ کشیدگی میں کمی کی جائے تاکہ فائر بندی ہو سکے. لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا. حماس کے سیاسی رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے لبنان کے ایک ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ 1 یا 2 روز میں جنگ بندی ہو سکتی ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے. بچے سب کو اچھے لگتے ہیں مگر ہنستے مسکراتے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی بہتر نگہداشت کے لیے کنبے کے افراد اور وسائل میں توازن رہے. توازن برقرار، زندگی باوقار. محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا.
पाकिस्तानी कौम कल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करेगी। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में रैलियां और मुजाहिरे होंगे और इसराइली जारहियत की मजम्मत की जाएगी। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि मसला फ़लस्तीन सिर्फ अरब दुनिया का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा और इंसानियत का मसला है और इसके मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते समेत आलमी अमन कायम नहीं हो सकता। देखते हैं हुमा इकबाल की ये रिपोर्ट। दर्द का कोई मजहब नहीं होता, बिछड़ जाने वालों के गम बिल्कुल एक से होते हैं, चाहे वो कुर्रा अर्ज के किसी भी कोने में बसते हैं। मगर शायद आलमी ताकतें इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी हैं। अर्ज़ फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान गुज़िश्ता एक सदी से जबर तसल्लुत की चक्कियों में पिस रहे हैं। अर्ज़ मुक़द्दस के बासियों से उनकी अपनी ही ज़मीन छीन ली गई है। कितने ही निहत्ते फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं, माओं से लख्ते जिगर बिछड़ गए और आन की आन में मनो मट्टी तले दफन हो गए। माए सरापा सवाल हैं, खौफ के साए में ज़िंदगी कब तक और क्यों कर बसर हो। किस जुर्म के एवज़ मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। छोटे बच्चों की लाशों को मलबे से निकालने के मनाजिर इसराइल के वहशियाना इक़दामात पर रोशनी डालते हैं। सदी की बदतरीन जारियत के नतीजे में अब तक इसराइली हमलों से 200 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि ये ऐवान इसराइल की इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान हमेशा से गज़ा के मुहासरे और इसराइली फ़ौज की गज़ा में पेशकदमी की मज़म्मत करता आ रहा है और इस मसले का मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन हल का मुतालबा करता है। पाकिस्तान में 21 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। मुल्क भर में खुतबात जुमा के दौरान मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की जाएगी। आलमी दुनिया से अपील की जाएगी कि वह जुल्म के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। इस वक्त पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के साथ राब्ते में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पूरे आलम इस्लाम की अक़वाम मुत्तहिदा में तर्जुमानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का विज़न है कि उम्मत मुस्लिमा को इन मसाइल पर मुत्तहिद किया जाए। कोई एक मुल्क इन मसाइल पर इस तरह किरदार अदा नहीं कर सकता जिस तरह पूरी उम्मत मुत्तहिद होकर कर सकती है। अगर इसराइली जारियत नहीं रुकती और फ़लस्तीनियों के लिए आज़ाद रियासत के हक़ को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर खित्ते में अमन बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन एरियाज़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा है कि सरसब्ज़ पाकिस्तान हमारी आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। इस हवाले से ज़मीन के इस्तेमाल के क़वाइद व ज़वाबित और इन पर अमल दरामद की हिकमत अमली फ़ौरी मुरत्तब की जाए। इस्लामाबाद में तामीराती शोबे से मुताल्लिक़ कौमी राबता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्रीन एरियाज़ के तहफ़्फ़ुज़ को नेशनल इमरजेंसी के तौर पर लिया जाए और इसमें अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस रफ्तार से गैर मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के बगैर शहरों की हदूद में इजाफा हो रहा है, इससे माहौलियात को लाहिक शदीद ख़तरात के साथ साथ फूड सिक्योरिटी और इंतज़ामी मसाइल पैदा होने का अंदेशा है, लिहाजा इस पर फौरी तवज्जो दी जाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ग्रीन एरियाज़ प्रोटेक्शन प्लान और इस पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली फौरी तश्कील देने की हिदायत की। कौमी राबता कमेटी के इजलास में कम आमदन वाले अफराद को घरों की तामीर के लिए बैंकों की जानिब से कर्ज़ों की फराहमी, अवाम को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कमज़ोर तबकों को रोज़गार और ज़ाती घरों की तामीर के लिए आसान कर्ज़ों की फराहमी, सेहत कार्ड के इजरा और गरीब ख़ानदानों के कम अज़ कम एक अफराद को फ़नी तरबियत दिलाने के लिए जामे प्लान पेश करने की ज़िम्मेदारी वज़ीर ख़जाना को सौंप दी। इजलास में फैसला किया गया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रीन बिल्डिंग कोड्स का निफाज नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबों पर किया जाएगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में रावी अर्बन डेवलपमेंट सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास को बताया गया कि रावी सिटी के तहत 2000 एकड़ पर मुहित सफ़ायर बे मनसूबे से हुकूमत को मिलने वाले महासिल का तखमीना 25 अरब रुपये लगाया गया है, जबकि मनसूबे से मजमूई तौर पर 150 अरब रुपये की माशी सरगर्मियाँ पैदा होगी। इजलास को बताया गया कि मुल्क की तमाम बड़ी जामियात से रावी सिटी में कैंपस खोलने के लिए राब्ते किए गए हैं। इसके अलावा स्विस कंपनी लिविंगस्टोन ग्रीन टेक जोन 3 में जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से बैनुल-अक़वामी मेयार के फार्म बनाने में मुआवनत करेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि रावी सिटी मंसूबे में नौजवानों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए यंग लीडरशिप प्रोग्राम के तहत 25,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनसे नौजवानों की पहली खेप बाकायदा काम का आगाज़ कर देगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पहले ज़ैली फेज़ में ज़मीन की निशानदेही कर ली गई है, जिसमें सरमायाकार गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। मुश्तरका तामीराती मनसूबों के जरिए रेलवे की गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन को बरूएकार लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मनसूबों की बर वक्त तकमील पर जोर देते हुए कहा कि रावी सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इन मनसूबों से लाहौर पर आबादी का दबाव कम होगा और शहरियों को बैनुल-अक़वामी मयार की रिहाइश मैसर आएगी।
जौहरी पावर प्लांट के 2 का कल बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जा रहा है। इफ्तिताह की वर्चुअल तकरीब बैक वक्त इस्लामाबाद, K2 जौहरी पावर प्लांट कराची और बीजिंग में होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। एटमी बिजली पैदा करने वाले कराची एटमी पावर मंसूबे का नया यूनिट K2 स्टेट ऑफ द आर्ट तीसरी जनरेशन का पावर प्लांट है, जो हिफाजती निज़ामों बिलखसूस अंदरूनी और बैरूनी हादसे से बचाव के काबिल है, बल्कि हंगामी रद्द अमल की सलाहियत भी रखता है। प्लांट की मतवक्के मियाद 60 साल है, जबकि इसे मजीद 20 साल तक तोसी भी दी जा सकती है। ये प्लांट तोसी रिफ्यूलिंग साइकिल के साथ डिजाइन किया गया है। K2 की तामीर नवंबर 2013 में शुरू की गई थी, जबकि पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी PNRA की मंजूरी के बाद दिसंबर 2020 में इसमें ईंधन की लोडिंग शुरू कर दी गई। रवां साल फरवरी में प्लांट की फालियत, इसके ऑपरेशन और हिफाजती मेयार को जांचने के लिए इसकी कई आजमाइशें भी की जा चुकी हैं। प्लांट के आजमाइशी ऑपरेशन के लिए रवां साल मार्च में इसे नेशनल ग्रिड से मुंसलिक किया गया। प्लांट के इफ्तिताह के साथ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलाने वाला इदारा बन जाएगा, जिनमें 2 कराची जबकि 4 मियांवाली में चश्मा के मकाम पर कायम किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर PAEC के तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मजमूई पैदावारी गुंजाइश 1400 मेगावाट थी। K2 की 1100 मेगावाट की पैदावार से ये सलाहियत दुगनी हो जाएगी। इसी पैदावारी सलाहियत का हामिल कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूनिट 3 इस वक्त कमिश्निंग के मरहले में है और इससे आइंदा साल की पहली सहमाही में पैदावार मतवक्के है। यहाँ ये अमर काबिल मुसरत है कि इससे माहौल दोस्त, सस्ती और काबिल एतमाद बिजली की फराहमी मुमकिन होगी, जिससे मुल्क के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जौहरी तवानाई के जरिए बिजली के हुसूल के लिए 1100 मेगावाट के बिजली घर का इफ्तिताह कल किया जा रहा है। मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में यह अहम संग मील साबित होगा। कराची से मोहम्मद जुबैरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हुनरमंदों की शब रोज मेहनत से हॉक्सबे पर वाक़ कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट अहम संग मील अबूर करते हुए जौहरी तवानाई पर मुश्तमिल 1100 मेगावाट का बिजली घर तमाम तर कामयाब टेस्टिंग के बाद नेशनल ग्रिड में अपना हिस्सा शामिल करने के लिए तैयार है, जिससे माहौल दोस्त, सस्ती और तवील मुद्दत के लिए मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात का हुसूल मुमकिन हो गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में तमाम तर हिफाजती सिस्टम, हादसात की रोकथाम की मुमकिना सलाहियत और इमरजेंसी की सूरत में भी खुदकार हिफाजती तनसीबात शामिल हैं। इस नए न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकमील के बाद पाकिस्तान की बिजली की पैदावारी सलाहियत में न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा 1330 मेगावाट से तकरीबन दुगना हो जाएगा और यूँ पैदावारी लिहाज से न्यूक्लियर एनर्जी हमारे मुल्क की एनर्जी मिक्स का एक काबिल कदर हिस्सा हो जाएगा। जदीद तरीन टर्बाइन स्टेशन, मुख्तलिफ नौ ट्रांसफार्मर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ साथ स्टीम जनरेशन की प्लांट में तनसीब पाकिस्तान और चीन के हुनरमंदों की काबिल कदर काविशों और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंसदानों की सलाहियतों का जहां सबूत है, वहीं मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुल्क के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की संजीदा काविशों की अक्कास है। हम तवानाई के एक इंतहाई साफ, काबिल भरोसा और मौजूं कीमत जरिए को पाकिस्तान की तरक्की और माशरती फलाह के लिए मुकम्मल पेशा वराना तरीके से चलाए रखने के लिए हम वक्त मसरूफ़ रहेंगे। जौहरी तवानाई का ये मेगा प्रोजेक्ट मुल्क में रोजगार के नए मौके फराहम करने में अहम कदम साबित होगा, वहीं माशी तौर पर भी इसके दूररस नताइज मुरत्तब होंगे। जौहरी तवानाई के जरिए बिजली के हुसूल में ये मुल्क का सबसे बड़ा एटमी बिजली घर है, जहां से 1100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी, जबकि पाक चीन दोस्ती के लिए भी ये काबिल फ़ख्र मुंह बोलता सबूत है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन शंजी यानाजी और इंडस मोटर्स के CEO अली असगर जमाली ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म को कारोबार दोस्त हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बड़े पैमाने की सनत, खास तौर पर ऑटो इंडस्ट्री में बैरूनी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद के बारे में आगाह किया गया। वफ़द ने बताया कि टोयोटा कंपनी पाकिस्तान में ऑटो सनत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मकामी सतह पर तैयारी में गहरी दिलचस्पी रखती है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्हें रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि दौरा सऊदी अरब के बाद वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट के इस्तेमाल में इजाफा देखने में आया है।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तरक्याती सरगर्मियों के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने के लिए टैक्स नेट में इजाफा ज़रूरी है। इस्लामाबाद में FPCCI के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत कारोबारी बिरादरी को मुसाबकती और मुनसिफाना माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म है और इस ज़िम्न में मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद कोरोना सूरत हाल में ताजर बिरादरी को 1.2 खरब रुपए का पैकेज फराहम किया गया। बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द ने सदर मुमलिकत को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबी अमल की मजमूई कारकर्दगी बढ़ाने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जल्दी तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में इस मामले पर होने वाले इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मुतालिका इदारे वोटिंग मशीन की जल्द तैयारी के लिए टाइम लाइन्स तय करें। इजलास में मकामी सतह पर वोटिंग मशीन की तैयारी के सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी इंतखाबी अमल आसान और इस पर अवाम का एतमाद बढ़ाने में मुआविन साबित हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूक्रेन के दौरे में यूक्रेन के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मुसल्लह फ़ौज के सरबराह से अलहदा मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पेशा वराना उमूर, दिफा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने, खित्ते की मजमूई सलामती की सूरत हाल और अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। यूक्रेन की सियासी और अस्करी क़यादत ने खित्ते को तनाज़ात से बचाने के लिए और ख़ासतौर पर अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने मुलाकातों में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन के साथ बाहमी ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम बामकसद और तवील मियाद ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। मुलाकातों में फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़, दिफाई पैदावार, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। यूक्रेन की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यूक्रेन की फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूक्रेन के दौरे में खार्किव के इलाके में मिलिट्री टेस्ट साइट का दौरा भी किया। आर्मी चीफ ने यूक्रेन की फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ जंगी हथियारों और आलात के फील्ड टेस्ट का मुशाहिदा भी किया। आर्मी चीफ ने टेस्टों के दौरान जंगी हथियारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और मनसूबों में शरीक एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दोनों मुल्कों के रिवायती बाहमी ताल्लुकात में दिफाई शोबे में ताउन अहम जुज़्व रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिफाई शोबे में ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर यूक्रेन के साथ ताउन बढ़ाने का ख़्वाहां है। उन्होंने कहा कि दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के हवाले से भरपूर सिफारती मुहिम चला रहा है। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइली अफवाज के हमलों से बच्चों और ख़वातीन समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा ने मुतादिद सफ़ीरों और वज़राए ख़ारजा से फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के हवाले से राब्ता किया है। जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के इलाके उत्तर प्रदेश में गरीब नवाज मस्जिद शहीद करने की सख्त मजम्मत करता है। ये 100 बरस से ज़ायद पुरानी तारीखी मस्जिद थी और इस शर्मनाक अमल से बाबरी मस्जिद की शहादत की याद ताज़ा हुई। उन्होंने कहा, भारत अक़लियतों के सकाफती वर्से की हिफाजत को यकीनी बनाए। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुमताज़ हुर्रियत रहनुमाओं मीर वाइज, मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लॉन और शोहदाए हॉल की शहादत की बरसियों के मौके पर कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी और मज़ार शोहदा ईदगाह श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल और मार्च की कॉल हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीर वाइज उमर फ़ारूक ने दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी कश्मीरी अवाम से शहीद रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। मीर वाइज उमर फ़ारूक ने कश्मीरी अवाम से हड़ताल और मार्च के अलावा पूरे मकबूजा इलाके में दुआया मजालिस का अहतमाम करने की अपील की है। उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में इस रोज़ एहतजाजी रैलियाँ निकालने और दुआया मजालिस का अहतमाम करने पर भी जोर दिया है। हुर्रियत रहनुमाओं आगा सैयद हसन अल मौसवी, हकीम अब्दुल रशीद, ख्वाजा फिरदौस, मुख्तार अहमद वाज़ा, अब्दुल समद इनक़लाबी, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और नेशनल फ्रंट ने अपने बयानात में कहा है कि कश्मीरी अवाम के सियासी हुकूक और तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए मीर वाइज, मौलवी मोहम्मद फ़ारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की खुदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा है कि मीर वाइज, मौलवी मोहम्मद फ़ारूक एक शोला बयान मुकर्रर और साहिब बसीरत शख्स थे, जबकि ख्वाजा अब्दुल गनी लोन मुदब्बर सियासी रहनुमा और मुमताज़ कानूनदान थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए पुरअमन जिद्दोजहद में मीर वाइज, मौलवी मोहम्मद फ़ारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन के किरदार को सराहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं मोहम्मद फ़ारूक रहमानी, जाहिद अशरफ, सैयद एजाज़ रहमानी और अब्दुल मजीद मीर ने भी अपने बयानात में कश्मीर कॉज के लिए मीर वाइज, मौलवी मोहम्मद फ़ारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की खिदमात को उजागर किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर्स में कश्मीरी अवाम से कल के प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने की अपील की गई है। ये पोस्टर्स जम्मू कश्मीर यंग मेंस लीग और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के यूथ विंग की तरफ से चस्पा किए गए थे। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के बिरादर निस्बती हाजी मुख्तार अहमद मखदूमी श्रीनगर में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 93 बरस थी।
چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی نے اسلام آباد میں ایک تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ممتاز حریت رہنما شہید محمد اشرف سرائی کے بیٹے اور ان کے قریبی رشتہ داروں کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے محمد اشرف صحرائی، مولوی محمد فاروق، عبدالغنی لون اور دیگر کشمیری شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہریار خان آفریدی نے کہا پاکستان کبھی کشمیریوں کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 131 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 8.22% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں قائم خصوصی مراکز میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ وفاقی حکومت نے اساتذہ اور معاون عملے کو تیزی سے کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں صدف افضل۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 131 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 19,987 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 4,207 نئے مثبت کیسز سامنے آئے۔ مثبت کیسز کی شرح 8.22% رہی۔ اس وقت 4,517 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 5% سے کم کورونا پھیلاؤ والے اضلاع میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سیاحتی مقامات کو SOPs کی سخت شرائط کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ NCOC کے فیصلوں کے مطابق NPIs کے لیے جائزہ اجلاس 7 اور 21 جون کو ہوں گے۔ ملک بھر میں فیس ماسک کا پہننا لازمی ہوگا۔ رسک اسیسمنٹ کی بنیاد پر لاک ڈاؤنز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ وفاقی حکومت نے اساتذہ کرام اور تعلیمی شعبے سے منسلک تمام افراد کو فاسٹ ٹریک پر کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویکسین لگانے کا فیصلہ تعلیمی شعبے میں سرگرمیاں بحال رکھنے کے لیے NCOC کے ساتھ مشاورت سے کیا گیا ہے۔ بورڈ امتحانات میں تعینات عملے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے اور اس سلسلے میں تمام چیف سیکرٹریز کو فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ NCOC نے پروفیشنل امتحانات اور ٹیسٹوں کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے وفاقی وزارت تعلیم کو اپنی درخواست میں امتحانی مراکز، طلبہ کی تعداد اور اپنائی جانے والی SOPs کی تفصیلات فراہم کریں۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اگر انتظامات تسلی بخش ہوئے تو وزارت انہیں فوری طور پر اجازت نامہ جاری کر دے گی۔ تیسری لہر سے بچنے کے لیے اسٹے ہوم اسٹے سیف کی حکمت عملی کو اپنائیں تاکہ خود کو اور اپنے پیاروں کو اس وبا سے بچا سکیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بھارت میں کورونا کے وار جاری ہیں اور ایک دن میں مزید 2,76,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 34,36,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 16,58,00,000 سے زیادہ متاثر ہیں۔ تفصیل جانیے یاسر حسین سے۔ بھارت میں کورونا پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ ایک دن میں مزید 2,76,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ گئے، جبکہ مزید 3,874 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2,87,000 سے زیادہ، جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد 2,57,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارتی ریاستوں مدھیہ پردیش، اتر پردیش، ہریانہ اور کیرالہ میں بھی صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔ ادویات اور آکسیجن کی کمی کے باعث ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں بیڈز مریضوں سے بھرے ہیں۔ شمشان گھاٹوں میں 24 گھنٹے لاشیں جلائی جا رہی ہیں اور انہیں جلانے کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے۔ ادھر دریائے گنگا میں اتر پردیش کے مختلف مقامات پر سینکڑوں لاشیں تیر رہی ہیں یا دریا کے کنارے پر ریت میں دبی ہوئی ہیں۔ ان لاشوں کو دریا کے کنارے پر دفنایا جا رہا ہے۔ بہتی ہوئی مزید لاشوں کو نکالنے کے لیے دریا میں مختلف مقامات پر جال لگائے گئے ہیں۔ کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی لاشوں نے دریا کے کنارے رہنے والے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 34,34,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 16,56,00,000 سے زیادہ متاثر ہیں۔ اب تک 14,47,00,000 سے زیادہ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں بھی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، جہاں ہلاکتوں میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ امریکہ میں 24 گھنٹے میں 734 افراد ہلاک، جبکہ 29,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے۔ برطانیہ میں ایک دن میں 7 افراد ہلاک، جبکہ مزید 2,412 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ فرانس میں بھی کورونا کی صورتحال میں کافی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ 6 ماہ کی سخت پابندیوں کے بعد فرانس میں ریسٹورنٹس، کیفے، سینما اور عجائب گھروں کو SOPs کے تحت کھول دیا گیا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से बंदिशों को नरम करना मुश्किल है। कराची में कोरोना वायरस के सूबाई टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कराची में कोरोना के 16.82% केसेज आए हैं। टास्क फोर्स के अरकान और माहिरीन ने वज़ीर आला सिंध को मौजूदा बंदिश को जारी रखने की तजवीज़ भी दी। मुल्क भर में कायम खुसूसी मराकज़ में शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। एक्सपो सेंटर कराची में कायम सेंटर 24 घंटे फाल है। अली असगर अरबाब की रिपोर्ट। कोरोना की वबा ने दुनिया भर में जिंदगी के हर शोबे को बुरी तरह मुतासर किया है और इस वबा से बचने के लिए दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई है, जहाँ एक दिन में 30,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकती है। कैपेसिटी तो वैसे 15 से 20,000 की है, लेकिन हम 30,000 तक भी लगा सकते हैं क्योंकि 24 आवर्स बाय 7 है। लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि यहाँ पे अब तक हमने वैक्सीनेट किए तकरीबन 43,000 को वैक्सीनेट कर चुके हैं। मास वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के अमल को इंतहाई आसान बनाया गया है। स्क्रीन काउंटर पर लाने के बाद उनका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और शुगर वगैरह पूछी जाती है। अगर वो उनको फिट पाते हैं हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उनको भेज देते हैं। वैक्सीन लगवाने से इंसान के जिस्म में इम्यूनिटी पावर को ये डेवलप करती है। उस लिहाज से जब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो ये कोविड का जो असर है जिससे अमवात हो रही हैं पूरी दुनिया में, इससे बचा जा सकेगा। मास वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात को लोगों ने सराहा है। दवाई खानी या इंजेक्शन लगवाना ये सुन्नत रसूल है, इसलिए जो है ना ये लगवानी चाहिए। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। टोटल अभी 20 मिनट लगे हैं, इसमें मेरा तमाम चेकअप हो चुका है। चेकअप के बाद वैक्सीन भी मेरे लग गई है। यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम है और मैं चाहूँगी कि और भी सब लोग आएँ वैक्सीन करवाने के लिए, और यहाँ पे हमें कोई वेट नहीं करना पड़ा और सारा अमला जो है बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड भी कर रहा है और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। मास वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के बाद लोगों के इंतज़ार के लिए वेटिंग एरिया भी बनाया गया है ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में उनका फौरी इलाज किया जा सके। कोरोना से बचाव का वाहिद तरीका वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि इस तरह ही हम सब मिलकर कोरोना की वबा का मुकाबला कर सकते हैं। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, एक्सपो सेंटर कराची। कराची के मसाइल के हल के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर अली, हैदर ज़ैदी, सैयद अमीनुल हक, वज़ीर आला मुराद अली शाह और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। इजलास को बताया गया कि K4 प्रोजेक्ट पर 11 अरब रुपए से ज़ायद फंड खर्च हो चुके हैं। K4 मनसूबा 3 बरस में मुकम्मल होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि 6 अरब रुपए से हब वाटर सप्लाई सिस्टम की अपग्रेडेशन होगी, जबकि 36 अरब रुपए से ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S3 मुकम्मल किया जाएगा। ये मनसूबे भी 3 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। शुरका को आगाह किया गया कि 20 अरब रुपए की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट 4 कुरंगी का मंसूबा मालियाती इदारों के ताउन से मुकम्मल कर लिया जाएगा। इतलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास के ज़रिए अवाम को रियासत के नए तस्वुर से रूशनास कराया है। अपने बयान में वज़ीर मुमलिकत ने कहा, बिलावल भुट्टो की जमात की मुआशी हिकमत अमली लुटेरों की तिजोरियाँ भरने तक महदूद थी। उन्होंने कहा, कोरोना के बावजूद पसमानदा तबके की फलाह हुकूमती पॉलिसियों का महवर है। उन्होंने कहा, सिंध हुकूमत ने 5 अरब रुपए कोरोना की मदद के लिए, इमदाद के लिए मुख्तस किए, लेकिन 6 माह में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि शरीफ बरादरान ने जिस शराफत से मुल्की ख़जाने पर हाथ साफ किए, इदारों को दरबारी बनाने की कोशिश की, पार्लियामेंट को मुगलिया रंग दिया, उनके साथ कुछ भी मंसूब हो सकता है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का दौरा किया, जहाँ PIO सुहेल अली ने उन्हें ब्रीफिंग दी। फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात को उजागर करने के लिए PID का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी पर कामिल यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत के मंसूबों और उनके अवाम तक समरात अवाम के सामने लाए जाएँ। उन्होंने कहा कि इश्तिहारात के इजरा और अखबारात से मुतालिक उमूर कंप्यूटराइज होने से शफाफियत आएगी। PID को असर हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ईद से कबल मीडिया हाउसेस को 34 करोड़ की अदायगी की गई है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के दरमियान पेशावर में मुलाकात हुई, जिसमें तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी राहदारी के तहत जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। आइंदा माली साल में सरकारी शोबे की तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुजव्वज़ा मंसूबों में भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दरमियान मुलाकात में सियासी और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पंजाब हुकूमत रावलपिंडी के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबाई हुकूमत सूबे के हर शहर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। रावलपिंडी के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज तैयार किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है।
लाहौर में FIA के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किया गया है, लेकिन वो अपील कर सकते हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि आने वाले बजट सेशन में जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत को ही वोट देगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार से फेडरल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सनती नमू और सनतों की पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि सनती तरक्की का मईशत की मजबूती में कलीदी किरदार है, इससे नौजवानों को रोज़गार के मौके भी फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि छोटी सनतों की तरक्की के लिए पॉलिसी मुरतब की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को आइंदा माह से 25% खुसूसी अलाउंस देने का फैसला किया है। ताहम इसका इत्तलाक उन मुलाजमीन पर होगा जिनको तनख्वाह के अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलता। लाहौर में तनख्वाहों में फ़र्क दूर करने के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा बजट में मुलाजमीन को अच्छी खबर देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत बजट की तैयारी से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए अपना घर स्कीम, इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, विमेन एम्पावरमेंट फंड के क़याम के हवाले से मुजव्वज़ा सिफारिशात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के हुकाम को हिदायत की कि फ़ेडरल PSDP के तहत तरक्याती मनसूबों पर बर वक्त अमल दरामद के हवाले से मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि दुनिया अगर अमन चाहती है तो मसला फ़लस्तीन को फौरी तौर पर हल किया जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये वक्त